एप्लीकेशन लिखवा लिया, राइट, और बच गए उससे। तो मम्मी पापा को ढाल बनाना अभी नहीं करने का, क्या ही कर लेंगे हम, थोड़ा ज्यादा डांटेंगे, ज्यादा से ज्यादा तो सुन लेना। ओके, तो ट्राई टू मेक इट बिटवीन यू एंड मी, नॉट बिटवीन योर मम्मी एंड मी एंड योर पापा एंड मी ना। ओके। हम्म। What is adulthood? What is adulthood? What is maturity? Taking responsibility. Taking, yeah, that is called maturity. When you do not look for somebody to save you, okay? You don't look for somebody who will, please move the chair a little bit so that, yeah, yes, move a little bit. Dear students, where are we? What are we studying? Christopher Columbus, right? Yes, of course. Give me a second. Slowly and slowly, I'm becoming very fond of this class. Are you becoming fond of me too? Slowly and slowly, I'm becoming fond of this class. Yeah. Are you becoming fond of me too? Fond of somebody. If you become fond of someone, you start liking them. Okay. I am fond of comics. It means I like, yes. I am fond of football. Means I like football. And I am fond of my mom. I love my mom. I like her personality and everything. Okay. Yeah, I'm so fond of her like this. Okay. Let's continue. Christopher Columbus was a great explorer. For a long time, people believed that he discovered America. However, when you say however, you are saying something opposite to what you have already said. For a long time, people believed that he discovered America. He who? Christopher Columbus. He discovered America. However, we now know that the Norseman, Leif Erikson, landed there 500 years before Columbus. Before is a preposition, dear students. Before is a, so after before, you see a noun. For example, before dinner, I wash my hands. Before dinner, I say my prayers. I say my prayers. Okay. All right. So before the class, I do my homework before the class. I do my homework. So before is a preposition, and after before you have a noun. Okay. So before Diwali comes the Dashera. Before Diwali comes the Dashera comes before Diwali. All right. Like this before. So please understand. There is another word ago. If you remember ago, 5 years ago, 10 years ago, that's different. Don't mix up before and ago. Don't confuse them. If you want to say do din pehle, then you will say kuch kaam hua tha, past tense.
when you use ago, you use it in the past tense, guys, past simple. Okay, और वो expression क्या होगा? 2 days ago, 2 months ago, 2 years ago. You can change the number 2 and you can change the period, days, months, minutes, hours, whatever. Long time ago. Please come in, Shams. So शम्स से मैंने उसे 4 दिन पहले देखा था. आई शम्स 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 बिकॉज ही इज कम लेट. ओके, सो शम्स बेटा, मैंने उसे 4 दिन पहले देखा था. वेरी वेल डन. उसको टेंशन नहीं हुआ ना? अच्छा बेटा, अब तुम्हें कंफ्यूज करता हूं, ठीक है? तुमको वहां बिफोर क्यों नहीं बोला बेटा? 4 days बिफोर. वो बिफोर मतलब ही तो पहले होता है. उसके पास कोई जवाब नहीं होगा. उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो कोई टीचर थोड़ी है, वो बच्चा है, सीख रहा है. सही बोला था. अगर उसको उस सही का और आदत पड़ता रहे तो थोड़ा बड़ा होने पर, 17-18 साल होने पर, वो कभी भी गलती से वहां पर अगो की जगह कुछ और बोलेगा तो उसकी इंग्लिश कैसी गिनी जाएगी? अच्छी. गलत बोलता ही नहीं है, राइट? लेकिन कोई उससे ये उम्मीद करे कि वो उस दोनों में क्या फर्क है बताओ, तो वो कोई टीचर है क्या? उसका मकसद होना चाहिए सही बोल देना, सही लिख देना. ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना. बिफोर इज अ प्रीपोजिशन. ago is not a preposition. After ago you will never hear anything. Ago is the last word. जैसे 4 days ago I went to Patna. तो बोले सर, आप बोले ago should be the last word. It is the last word. बोलो कि नहीं है कि नहीं? मैंने क्या कहा? 4 days ago I went to Patna. ago last word है एक तरह से, क्योंकि 4 days ago के बाद कोई मामला नहीं है. उसके बाद अलग सेंटेंस है. क्या है सेंटेंस? I went to Patna. इसका मतलब I went to Patna, ago is the last word. Got it? और ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये अगो पास्ट टेंस में यूज होता है इस तरह से, इसका ख्याल रखना है ना. कई लोग हैं, मेरा कल इंजीनियर दोस्त है, मेरे से बात हो रही रात में, और ही वर्क्स इन बसरा, इराक. ओके, तो ऑफ कोर्स पीपल एक्सपेक्ट दैट हिज इंग्लिश शुड बी गुड. उसने कहा 2 days बिफोर. मैंने गौर करा था, उसने क्या कहा? उसको बोलना चाहिए था एग्जैक्टली पास्ट टेंस की कोई बात बोलनी है तो क्या बोलना है? अगो बोलना है. और सुनिएगा, अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि पास्ट टेंस की कोई बात बोलनी है, अगो बोलना है, ये बोलने के बाद मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, जरा गौर करिएगा. माई ब्रदर गॉट मैरिड बिफोर माई सिस्टर. ओके, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है भाई. तो बोलेंगे सर आपने बोला पास्ट टेंस में अगो बोलना है. ये सब कहते हैं लकीर के फकीर, दिमाग नहीं लगा, खाली एक लाइन याद कर लिया. अरे कहां लगाना था ये भी तो देखना था. पास्ट टेंस में पीरियड्स के पहले बताना है, कितना दिन पहले, कितना समय पहले, कितना समय पहले. यहां तो कितना समय पहले की बात ही नहीं हो रही, ये तो सीक्वेंस की बात हो रही. माई ब्रदर गॉट मैरिड बिफोर माई सिस्टर. गॉट इट? माई ब्रदर गॉट मैरिड बिफोर माई सिस्टर गॉट मैरिड. भाई की शादी हुई, बहन की शादी हुई, पहले किसकी हुई? भाई की शादी पहले हुई. माई ब्रदर गॉट मैरिड बिफोर माई सिस्टर. ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? तो अलग अलग वर्ड्स हैं दोनों, और ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी फीलिंग. अगर शम्स को ये बात समझ में आई कि वहां गो बोलना चाहिए था, तो ये एक्सपोजर से समझ में आई उसको. उससे कोई रूल वूल नहीं पता था. पूछो उसको कोई रूल वूल पता होता तो. बेटा शम्स, तुमने जो जवाब दिया, आई सॉ हर 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, तो कोई रूल वूल सोच के बोले थे बेटा? बस यही लगा कि नेचुरल यही लग रहा है, तुम्हें सिखाया गया है. सिखाने का मतलब एक्सपोजर से. और जो बेटा घोड़ा और गाड़ी मिलकर चलते हैं ना, लेकिन हमेशा घोड़ा आगे होता है, गाड़ी पीछे. कोई अगर गाड़ी को आगे लगा दे, घोड़े को पीछे रख दे, तो कैसे घोड़ा गाड़ी चलेगा? दोनों हैं लेकिन नहीं चलेगा. सीक्वेंस मायने रखता है ना. तो लैंग्वेज में एक्सपोजर इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है बेटा, जितना एक्सपोजर मिलेगा उतना दिमाग काम करेगा. तो एक्सपोजर लेते जाइए. However is a word we use to show contrast. Notice, for a long time people believed that he discovered America. However, we now know that the Norseman Leif Erikson landed there. Landed where? There means don't say America. Landed in America. Landed America बोल पाएंगे? कैसे बोल दिया आपने अमेरिका?
लैंडेड देयर, देयर मीन्स लैंडेड इन अमेरिका। लैंडेड अमेरिका मत बोलना ताकि दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। लैंडेड इन, लैंडेड देयर। हाँ, ऑलराइट। 500 years बिफोर कोलंबस, मैं अपने भैया से 3 साल, भैया नहीं, मैं अपने छोटे भाई से 3 साल पहले पैदा हुआ था। छोटे भाई से कैसे बोलेंगे? आई वॉज बोर्न 3 साल पहले, 3 years को लगाते हैं। कंपेयर सीक्वेंस है ये, ठीक है। अगो अभी से पीछे, बेटा याद करना, अगो टाइम नाउ टाइम देन, एक्सरसाइज याद है? टाइम देन टाइम नाउ, प्रैक्टिस बुक में एक्सरसाइज था। यानी अगो जब भी देखा जाता है टाइम नाउ से पीछे की तरफ देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं मेरे छोटे भाई के जन्म से 3 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, तो आई वॉज बोर्न 3 years बिफोर माई ब्रदर वॉज बोर्न। ठीक है, उल्टा बोल देते हैं कि मेरा भाई मेरे जन्म के 3 साल बाद पैदा हुआ था। माई ब्रदर वॉज बोर्न 3 years आफ्टर आई वॉज बोर्न। प्लीज, जैसे बिफोर था 3 years बिफोर, वैसे ही 3 years आफ्टर आई वॉज बोर्न। मेरे जन्म के 3 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ था। माई सिस्टर वॉज बोर्न 3 years आफ्टर आई वॉज बोर्न। यहाँ बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं चला पहले कौन बाद में कौन। तो जो पहले बोला गया उस पर ध्यान दीजिए। माई सिस्टर वॉज बोर्न 3 years आफ्टर आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म होने के 3 साल बाद मेरी बहन का जन्म। धीरे धीरे और पक्का होगा, टेंशन मत लीजिए। ये है कंफ्यूजिंग, जो लोग इसको आसान मानते हैं उनको लैंग्वेज का एहसास नहीं कि कौन सी चीज कंफ्यूज करती है लड़कों को। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, मैंने हल्का सा डाला है अपने दिमाग में, बट इसको और धीमी आंच पे पकाते रहेंगे हम लोग। ओके, फाइन, लेट्स कंटिन्यू। Wow, it's interesting. What's going on? I think yeah, somebody is sitting right behind, right in front of those keyboards, switches, and your head, you know. Okay. However, she is tall and beautiful. She is tall and, however, she has no manners. She has no manners. तो however समझ में आया? क्योंकि हमने कॉन्ट्रास्ट दिखाया। शी इज टॉल एंड ब्यूटिफुल, गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स। शी इज टॉल एंड ब्यूटिफुल, full stop. However, she has no manners. Okay. Oh, शिष्टाचार, सलीका, सलीका, शिष्टाचार। Okay, manners. You have no manners. You have no manners. You scold people. What do you say? Especially young children. You have no manners. Okay. Teachers always say this line: mannerless students. Mannerless. Okay. Mannerless students. Okay. So, however, is clear. Sir's class is very interesting. However, full stop. However, he sometimes gets very angry when we don't study hard. Right? So, इस तरह से however can be used to just show contrast. To show contrast. Okay, let's continue. Columbus, okay, however, we now know. अब सबको पता है, हम लोग को पता है, क्या पता है भाई? What was my last example with however?
Okay, let's see. Next sentence बेटा, early life. Early life. अब मुझे बताइए अर्ली लाइफ में आप क्या बोलेंगे? Okay, okay. Get him on some other place, maybe. All right. Um, early life. When you read this expression, this phrase, early life, can you tell me the part of a speech of the words used in this phrase? Can you tell me the parts of a speech of the words used in this place? You can tell me. It's easy. Life is always a. Life means beta. Life is a noun beta. Noun नहीं पता चलता है. Life मतलब जीवन. जीवन एक चीज है. ठीक है, जो एक गिफ्ट है ऊपर वाले ने दिया हम लोगों को. क्या? जीवन. तो जीवन क्या है? एक गिफ्ट है. तो क्या हो गया? लाइफ इज अ नाउन. ओके, अब अर्ली क्या है? इजी. सो द प्रॉब्लम इज यू डिडंट अंडरस्टैंड लाइफ इज अ नाउन. मैं बताऊं, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम नाउन फील नहीं कर पाते. डेफिनेशन तो याद ही है, बट फील नहीं कर पाते नाउन. तो प्लीज फील करना शुरू करिए. लाइफ इज अ नाउन बेटा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट्स एन आइडिया. जी रहे हैं ना, इसी को जीवन कहते हैं ना. तो जीवन एक नाउन, एक चीज है. ठीक है, और वो चीज एब्स्ट्रैक्ट है. इसका कोई बॉडी नहीं होता. जीवन का कोई बॉडी नहीं होता. बोले सर है सर, जीवन का बॉडी है सर. जीवन मोदी जी, उनका बहुत बड़ा बॉडी है सर. ओके. ओके, अर्ली लाइफ. ओके, अर्ली इज एन एडजेक्टिव. अर्ली लाइफ. ये सब जरूरी है करना. आपको लगा क्यों करवाते हो? आप अपने आप से पूछो और फिर भरोसा करो कि एक सर करवा रहे हैं, कुछ जरूर इंपॉर्टेंट है. हर जगह पूछा करो अपने आप से. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये 3 वर्ड्स बहुत जरूरी समझना तुम्हारे लिए. और थोड़ा सा एडवर्ब. Columbus was born in early life. Whose early life? Columbus's. Columbus's early life. Okay. Columbus was born in 1451 in Genoa, Italy. Okay. Give me a second again. Thank you. I appreciate it. You guys can keep talking, no problems. Okay, beta. Columbus was born in 1451 in Genoa, Italy. He was born in Genoa, Italy. He was one of 5 children. He was one of. He didn't go to school. He didn't go to. Number 2. Beta, when you read he was one of 5 children, you can tell me how many brothers and sisters he had, right? Come on, tell me, beta. Yeah, that's what I was waiting. Just I don't want you to say 5. That's it. I just want you to say 4. And I know you can. You will only say 5 if you are a little bit less focused, right? You're taking it lightly. You will not pay attention. He was one of 5 children.
It means how many brothers and sisters he had? Common sense, right? Yeah. He was one of 5 children. I don't ask very difficult questions. I don't. He didn't go to school. He didn't go to. Number 2, he worked with his father, who was a wool worker. He worked with his father, who was a wool worker. Notice the way it is written. He worked with his father. Okay, remember, comma is used. The purpose of comma is to add extra information. He worked with his father, okay, who was a wool worker. If I remove that comma and put a full stop, then what will be the next part? Right? He worked with his father, full stop. He was a wool worker. It is extra information, right? Okay. So after comma, there is always extra information. He worked with his father, who was a wool worker. He worked with his father, who was a wool worker. वो अपने पिताजी के साथ काम करता था, जो कि एक wool worker थे. All right. He worked with his father, comma, who was a wool worker. Okay. Next, beta. However, he always wanted to go to sea. He worked with his father as a wool worker, but his dream was to go. अगर मैंने dream was बोल दिया तो ही नहीं बोलिए. His dream was to go to sea. All right. His dream was to go to sea. He always wanted to go to sea. अभी go to sea से आप क्या अंदाजा लगाते बच्चों? बीच पे जाने का उसका मन करता था. अगर बीच पे जाने का मन करता था, सेंटेंस होगा he wanted to go to the beach. He wanted to go to the beach. लेकिन हम लिख रहे हैं he always wanted to go to sea. He wanted to go to sea. तो ये क्या हुआ? वो समंदर में जाना चाहता था. समंदर नहाने वहाने के लिए नहीं, नहीं, वो शिप वाला लाइफ पसंद करता था. शिप वाला लाइफ होता ना एक. He wanted to go to sea. He wanted to go to sea. यहाँ पर एक फ्रेज को हाईलाइट करिए. Go to sea. Go to sea को हाईलाइट करना है आपको. Go to sea. 3 words. कितना इंपॉर्टेंट लेसन है. जो लोग मेरा ग्रामर क्लास ज्वाइन किए संडे को, टुडे इज Tuesday. Okay. So tomorrow we have another grammar class at 9 o'clock in the evening. Hindi medium. Okay. The point is, yesterday we learned, you were there on Sunday, कि हमें सी के पहले द लगाना होता है. द सी बोलते हैं. यहाँ नहीं लिखा है, तो प्लीज इसको रखिए दिमाग में और डिस्कस करेंगे उस दिन. ग्रामर क्लास का फी 180. 20 रुपए तुमने किस चीज का काटा रे? Okay. He always wanted to go to sea. All right. वो सब अब इससे क्या पता चला? वो नाविक बनना चाहता था, सेलर बनना चाहता था. ये समझना होगा इससे. He wanted to go to sea से क्या समझेंगे हम लोग? He wanted to become a sailor. क्योंकि अगर आप सेलर नहीं बनोगे तो आप सी पे कैसे जियोगे? He wanted to go to sea. अच्छा. He wanted to go to school से क्या पता चलता है कि वो पढ़ना चाहता था? तो he wanted to go to sea से क्या पता चलता है? वो सेलर बनना चाहता था. He wanted to go to sea. इसको समंदर से, बीच से नहीं जोड़ना है, नहाने से नहीं जोड़ना है. If somebody wants to live at sea, somebody wants to live at sea, तो मतलब फिर वो क्या बनना चाहता है? अब वो तो अलग है, सेलर बनना चाहता है. ऑलराइट. तो एट सी और टू सी से कुछ मीनिंग निकला हम लोग का. टू सी, गो टू सी एंड लिव एट सी. ऑलराइट. ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है. ऑन टुमारो एट 9 o'clock वी विल डिस्कस दिस. सारे जो भी इस तरह के क्लासेस में कुछ एक्स्ट्रा बातें आएंगी, तो वी विल हैव डिस्कशंस अबाउट देम इन द
ग्रामर क्लास, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है ग्रामर रूल को। सुन ले जरा बेटा, हम लोग ने संडे को रूल पढ़ा कि द सी बोलना पड़ता है, ठीक है, द ओशन पढ़ना बोलना पड़ता है, ठीक है, द स्टार्स बोलना पड़ता है, द स्काई बोलना पड़ता है। जो ज्योग्राफिकल चीजें होती है ना, उनके पहले द बोलना पड़ता है, ठीक है, द बीच, ठीक है, इस तरह से बोलना होता है। तो आई लव गोइंग टू द बीच। ओके, चलिए ध्यान देते हैं। ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू सी, ये लाइन, ही वांटेड टू गो टू सी, वो समंदर में जाना चाहता था, ये तो पता चल रहा है। तो समंदर में जाने का मतलब क्या होता है? वो सेलर बनना चाहता। सेलर होता है जो शिप पे होते हैं ना, कैप्टन और नाविक, तो वो महीनों महीनों रहते हैं कहाँ? समंदर में। तो ही वांटेड टू गो टू सी मींस ही वांटेड टू बिकम अ सेलर। सेलर, like merchant navy, you have heard. So those people who work in that merchant navy thing, those people spend a lot of time at sea, at, yeah, समंदर में बिताते हो बहुत सारा समय। They spend a lot of time at sea. Sailors spend a lot of time at sea. Okay. अभी समझा? He always wanted to go to sea. Life at sea आया ना? Life at, मतलब अब देखिए जब सेलर बना तो क्या हुआ? लाइफ एट सी मतलब वो जीवन जो एक नाविक के तौर पे था, उसके बारे में बात करते हैं। लाइफ एट सी मींस his life as a sailor. First, we learned about his early life, that he didn't go to school, right? He worked with his father. But what was his dream? His dream was to go to sea, right? So that was his early childhood, early life. Life at sea, life as a sailor. Life at sea matlab he became a sailor. He wanted to be a sailor. He became a sailor. Ban gaya. He became a sailor. Between 1477 and 1485, he visited many countries. Between 1477 and 1485, he visited many countries. He visited many countries between these 2 years. In a period of 8 years, in a period of, how did I decide 8? 1485 minus 1477. Between 1477 and 1485, he visited many countries. Right? Between 1477 and 1485. When did he visit many countries? इन हिंदी 1477 और 1485 के बीच में, है ना? He visited many countries. Okay. Including Spain, Iceland, Ireland, Madeira and West Africa. चलो दूसरा सेंटेंस सुनना बेटा, इंक्लूडिंग वर्ड के लिए बोल रहा है, ठीक है? बिटवीन वाला तो फ्रेज बता दिए, अब इंक्लूडिंग पे फोकस आएगा। I went to the party and ate a lot of things, comma, आगे बोलना। हाँ, अभी भी घबरा रहे हो? देख लो सेंटेंस बेटा बच्चा वहां। He visited many countries, including Spain, Iceland, Ireland, Madeira and West Africa. अब बोलो, I went to the party and ate many things, including, okay? He dated many girls. Guys, he dated many girls, including, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अब दूसरा तरीके से बोलना एक नॉर्मल आदमी के लिए, ठीक है? He dated many girls, including some of his teachers. He dated, लड़का था। Okay, he dated many girls, including some of his teachers and some of his neighbors and some of his mom's friends. Stupid sentence, right? Including. Okay, चलो। ना डोंट से दैट। ना अब ज्यादा चला जाएगा, फिर वो दूसरा चीज हो जाएगा, ये क्लास नहीं रह जाएगा दोस्तों फिर। ठीक है, हमें हमेशा वो हल्की सी फाइन लाइन को समझ लेना है कि छोड़ देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं तो फाइन लाइन जहां क्रॉस करेंगे ना, तो दूसरे रास्ते जगह पहुंच जाएंगे। जैसे बॉर्डर होता है ना, एकदम फाइन लाइन है ना, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन
mischievous and titillating and vulgar. Okay, एक तरफ है mischievous and titillating, हल्का सा लाइन क्रॉस किए वो हो जाएगा, है ना। तो ये हमेशा उससे बच के रहना है, इधर ही रहना है ना। मिस्चीवस हो सकते हैं, टिटिलेटिंग हो सकते हैं, which we are all because we have that kind of personality, right? We are that kind. लेकिन I'm just worried about my little children. Where are they? Now these children are fine. They're all nice. They understand what I'm saying in a right way. Okay. So including, yeah, I'm thinking about maybe his father their father has come. I don't know. I'll talk to them. I'll talk to their dad. Why they're not here? The little girls. Yeah. Okay, guys. Say I have many clothes, including a three-piece suit and a sherwani. All right. आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो मजाक कर रहा तो ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग बोलने पे आप सारा समझ लेना कि आप ज्यादातर इम्फेसाइज करते कुछ बातें जोड़ करके, राइट। अब छोटी छोटी बातें क्यों बोलेंगे इंक्लूडिंग में? हाँ, तो अब कर सकते हैं जैसी मर्जी है, ठीक है। ही डिड मेनी जॉब्स, आगे बढ़िए। Okay, including teaching and gardening and working as a waiter in a restaurant and carpentry. Okay, all right. Okay, including is clear. अच्छा, खाली इंक्लूडिंग के बाद जो बोलते हैं उतना ही काम किया कि उसके अलावा भी और भी था? और भी था, ये तो कुछ ही एग्जांपल्स इंक्लूडिंग में, राइट। मतलब जिसमें ये भी शामिल है, ये नहीं कि यही खाली थे। अगर मैं कहूँ उसने पांच पांच कंट्रीज विजिट की, ठीक है, ही विजिटेड स्पेन, आइसलैंड, आयरलैंड, मदेरा एंड वेस्ट अफ्रीका, पांच कंट्रीज, तो आप क्या बोलेंगे? ना ना, ये सही सच नहीं है, पांच से ज्यादा कंट्रीज विजिट किए थे। ये तो इंक्लूडिंग में है, यानी कि इससे ज्यादा भी थे। अगर मैंने कहा ही डेटेड मेनी गर्ल्स इंक्लूडिंग सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, तो इसका मतलब खाली सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, हाँ वो भी उसमें शामिल, राइट। ओके, सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है। सो नंबर 3, he learned to read and write Spanish. He learned to read and write Spanish during his early travels. He learned to read and write Spanish during his early travels. Okay. ड्यूरिंग हिज अर्ली ट्रेवल्स, कुछ लोग का ड्यूरिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, चुप रहे बैठे हैं भाई, जो जब जाता था ना शुरू में उसी दौरान सीख लिया है ना। ड्यूरिंग हिज अर्ली ट्रेवल्स ही लर्न टू रीड एंड राइट स्पेनिश। व्हेन डिड ही लर्न टू रीड एंड राइट स्पेनिश? ड्यूरिंग हिज अर्ली ट्रेवल्स। ओके, अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग द क्लास he was playing PUBG on his mobile. He was playing PUBG during the class. Now you understand why the teacher punished him? Because he was playing PUBG during his, oh my God, okay, okay. During something done? During something is okay? So he learned to read and write Spanish during his early travels. During my childhood. Matlab, right? Yeah, okay. Hmm. Okay. Next. Next, beta. Next. Columbus wanted to be rich and famous. Columbus wanted to be rich and famous for 8 years. So everybody wants to be rich and famous, I think. Do you want to be rich and famous? Why not? Hmm?
What happened? He became a sailor between 1477 and 1485. He visited many countries, including Spain, Iceland, Ireland, Madeira, and West Africa. And he learned to read and write Spanish during his early travels. Columbus wanted to be rich and famous. Is it the past tense? Is it the past tense? Of course, yes. How do you know? Wanted. Sir, to be लिखा है उसमें past tense क्यों नहीं है? क्योंकि वो verb मेरा नहीं है. Columbus wanted is my verb. वो क्या चाहता था? वो हमेशा 2+V1 ही लिखा होगा. वो शादी करना चाहता था. He wanted to get married. वो मरना चाहता था. He wanted to die. उसमें कोई टेंशन नहीं है. वो पास्ट हो गया वांटेड, वही हमारा पास्ट है. उसके बाद का कोई पास्ट से कनेक्शन नहीं है. टू डाई में कोई कनेक्शन नहीं. मैं मरना चाहता हूं. सॉरी, ये बकवास सेंटेंस. बोलो मैं जीना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू लिव. आई वॉन्ट टू लिव. आई वॉन्ट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. आई वॉन्टेड टू ना लिव ए लॉन्ग लाइफ. बैड सेंटेंस. मैंने सोचा बच्चे यहाँ पे नहीं बोलना था. आई वॉन्टेड टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. आई वॉन्टेड टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. नो प्रॉब्लम. तो टू लिव का कोई टेंशन नहीं है टेंस से. जो वर्ब के पहले टू आ जाए वो टेंस से आजाद हो जाता है. जिस वर्ब में वर्ब के पहले क्या लग जाए बेटा, वो टेंस से आजाद है. कोई फर्क नहीं पड़ता टेंस कौन सा रहेगा, वो वैसा ही रहेगा. 2+B1 उसका कभी चेंज नहीं होता. कोई टेंस में रहेगा वैसे ही रहेगा. ठीक है. तो ही wanted to be rich and famous for 8 years. 8 साल. For 8 years he begged. For 8 years he begged. Begged means requested. He begged King Ferdinand and Queen Isabella of Spain to give him money to discover new lands. He begged. Past tense. Requested. Past tense. He begged. Okay. He begged King Ferdinand and Queen Isabella of Spain to give him money to discover new lands. He said, Babuji, Maiji, please, give me some money. I want to discover new lands. They said, come tomorrow. Babuji, Maiji, please give me some money. I want to discover new lands. Come next week. Come next month. Come tomorrow. Come next year. For 8 years, guys. Enough. For 8 years. My goodness. Do you think he was a very patient person? And he was a very determined person. Determined. एक बार जो ठान लिया तो determined. नहीं करेंगे शादी तो नहीं करेंगे. He was very determined. Now, 8 years, he begged and begged and begged the king and the queen of Spain to give him money. Why? To discover new lands. He wanted to find new lands. Okay. Finally, 8 years is a long wait. Finally, they agreed. Okay, Columbus. All right, Columbus. Fine, Columbus. Can I tell you the real reason why they agreed? For 8 years, this guy, Columbus, kept going to the court
and kept requesting the king and the queen. And the queen had started liking this guy. The queen had started, yeah. The king noticed that the king keeps looking at him, and the way she looked at him was very different. The king felt jealous. He said, Bhagao sale ko. All right. He said, Tathastu. All right. Take the money. Take the money and get lost. So he gave the money because the queen had started feeling attracted to this guy. So the king thought the best was he stops coming. And how would he stop coming? When he gave him money. By the way, this is all bullshit, okay? This is not true. You guys are listening to me with a lot of intent. I'm sorry. Okay, fine. So now nothing like this happened, guys. It was all my, imagination. Okay. Columbus, finally they agreed. The king and the queen agreed. Actually, the reality is that the queen started feeling jealous because the king had started liking him. All right. All right. All right. They agreed. Yeah, the queen was feeling very jealous of their bromance. Do you know this word? Bromance. When two boys are very cozy with each other, love each other, like each other, we call it bromance. Romance is the word because there are two boys, so bromance. Okay, but there is nothing sexual about it. Okay, bromance is just like, I think, a good connection between two boys. They like each other. Okay, nothing bad about it. Columbus wanted to be rich and famous. For 8 years, he begged the king and the queen to give him money to discover new lands. Finally, they agreed. Do you have this kind of patience? For 8 years, can you try something? Hearing no, 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 no. It's like, taking, board exam 8 times. 8 years, my goodness. After 4, 5 attempts, people say, Hamza na hoga, chhod de. Right? This guy, for 8 years, he tried, tried, tried. You have to give the credit where it is due. Give the credit where it is due. मतलब जहां सही बोलना वहां बोलना पड़ेगा भाई. सही है ना? Columbus was a great guy because he had a lot of patience, determination. He had a lot of determination. He said, I have to do it, I have to do it. Okay. Finally, they agreed. Beta, they agreed. Negative karo beta. Very good, my dear students. I'm proud of you. They didn't agree, है ना? They didn't agree. Okay, they agreed. या कुछ लोग बोल देते हैं aren't agree, I'm not agree. ये सब नहीं सही है क्योंकि agree खुद वर्ब है. तो be वर्ब क्या कर रहा है वहां पे? Okay, हम आपकी बात से सहमत हैं. I agree with you, है ना? नहीं सहमत है. I don't agree with you. Okay, वो तैयार हो गए. They agreed. यहाँ रेडी बोलने की जरूरत नहीं है. Okay, वो लोग तैयार हो गए. फाइनली वो लोग तैयार हो गए. फाइनली दे अग्रीड. अब तैयार पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए तो थोड़ी अग्रीड बोल देंगे. यही प्रॉब्लम है. कई क्लास में न टीचर न स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देते हैं कि एक हिंदी से एक मीनिंग नहीं होती है. वो लोग तैयार हो गए पार्टी में जाने के लिए. मतलब तैयार हो गए कपड़े लत्ते पहन के. तो ये हो गया दे गॉट रेडी टू गो. और वो तैयार हो गए जाने के लिए, मतलब उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे. They agreed to go to the party. Do you understand the difference? They got ready for the party. इसमें कपड़े लत्ते पहन के तैयार हो गए. And they agreed to go to the party. मतलब पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया, तैयार हो गए. हिंदी में एक ही लाइन बोल सकते हैं, फाइनली पापा तैयार हो गए. यानी he said yes, he agreed. ठीक है, ज्यादातर यही केस में बोलते हैं ना, फाइनली पापा तैयार हो गए, मतलब बात, फाइनली पापा तैयार हो गए मतलब बात मान लिए, he agreed. तो दोस्तों, अगर आपका इमेजिनेशन चलता है, अगर आप रट्टू तोता नहीं हो, अगर आप यूज कर सकते हो अपने इमेजिनेशन, तो आप ऐसे जगह पर नहीं फंसोगे. और जो फंसते हैं ना, उनका बहुत दिन लगता है, क्योंकि आप खुद समझ जाइए ना इन चीजों को कि भाई पापा तैयार हो गए का इंग्लिश किसने कहा लिखो, पापा तैयार हो गए पार्टी में जाने के लिए, इसकी इंग्लिश करो. ठीक है, और तुमने इसकी लिख दी फटाक से, क्या पापा गॉट रेडी. अब उसने कहा गलत है. जिसने पूछा बोले क्या गलत है इसमें. देखो, पहले तो आपको लिखना नहीं चाहिए था, आपको पहले पूछना चाहिए कौन वाला.
कपड़ा पहन के तैयार हो गए कि हाँ कह दिए? ये पूछना आपका काम बनता था। जिसने फट से ट्रांसलेट कर दिया उसने अपने इमेजिनेशन को अच्छे से समझा नहीं भाई कि यहाँ पर सिचुएशन दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा एक एग्जांपल नहीं, ऐसे हजार एग्जांपल मिलेंगे। मुझसे लोग ट्रांसलेशन नहीं पूछते क्योंकि वो मुझसे ट्रांसलेशन पूछेंगे, हम उनसे 10 सवाल पूछेंगे, ये वाला क्यों बोला, वो वाला क्यों बोला, वो बोले यार यार सीधा सीधा बता दो ना। आप कैसे बता दें, हमको पता ही नहीं आप क्या बोलना चाहते हो। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर आप हिंदी महसूस कर सकते हैं तो उसकी इंग्लिश है। अगर आप हिंदी महसूस नहीं करें तो उसकी इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, और आप गोल गोल चक्कर में आंख बंद करके घूमते रहेंगे। आपको पसंद है वो करिए, आई डोंट एंजॉय डूइंग दैट। तो व्हेन समबडी आस्क्स मी, गिव्स मी अ हिंदी सेंटेंस, लिख के दे दिया किसके ट्रांसलेशन हो, मैं नहीं करता। बात किससे पूछूं कि उसका मतलब क्या है? ठीक है, डिपेंड करेगा मेरे इमेजिनेशन पे। हाँ, अगर मैं 4-5 तरीके से उसकी इंग्लिश कर दूं कि भाई एक सिचुएशन है तो ये, तो उतना हम ऐसे तभी करेंगे जब मेरा कोई अपना स्टूडेंट है जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूं, तब मैं करूंगा, नहीं तो मैं काहे टाइम वेस्ट करूं भाई किसी के टेस्ट का। देर आर पीपल हु डू स्टफ लाइक दिस। देयर वाज अ टाइम पीपल ओनली आस्क मी ट्रांसलेशन। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 17 लॉन्ग years, राइट? सो obviously initially things were different. A lot of people asked me a lot of translation because that's how people studied. This new method that you guys know, मेरे क्लास के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि वहां वैसे पढ़ाई नहीं होती जैसे सब जगह होती है। क्योंकि आप लोग जिसको भी बताते बोलते हैं ये तो अलग ही कोर्स, किताब दिखाओ, वहां चैप्टर का नाम तक पता नहीं रहता कि पढ़ेंगे क्या हम आज, किस दिन कौन सा टेंस चलेगा पता भी नहीं होता है। आज तक नहीं पता चला होगा कि किस दिन कौन सी पढ़ाई होने वाली, बस खाली पता है पेज नंबर ये होगा। अब पेज नंबर ये होने से क्या भी पढ़ाई समझ में आए, लेकिन पढ़ाई समझ में आ रही है और ग्रो भी कर रहे हैं लोग। अब यही कि आपका डेडिकेशन मायने रखता है सर। जितना ज्यादा डेडिकेट करोगे आप उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, तो पापा तैयार हो गए, मतलब कौन तैयार हो गया? राजा रानी तैयार हो गए। दे अग्रीड, बोले ठीक है जाओ। दे अग्रीड एंड ही गॉट 3 ships। ही गॉट ही गॉट 3 ships। उसको 3 ships मिले। ही गॉट 3 ships, द संता मरिया, द पिंटा एंड द निन्या। तीनों नाम पढ़िए, द संता मरिया, द पिंटा एंड द निन्या। और पहला वर्ड पे फोकस करिए, नाम के। ठीक है, तो क्या लगा? द इससे पता चल गया कि जब भी हमको जहाज का नाम लेना है द बोल देना है। 3 एग्जाम्पल है, और क्या चाहिए? फाइनली दे अग्रीड एंड ही गॉट 3 ships, द संता मरिया, द पिंटा एंड द निन्या, and enough food for a voyage of 1 year. He also got enough food, enough, जितना जरूरत उतना। ओके, इनफ फूड फॉर, खाली इनफ फूड से कुछ नहीं पता चलेगा। इनफ फूड फॉर 1 year, 1 साल के लिए फूड दे दिए भाई, 1 साल खाओ, 1 साल तक घूमो। ठीक है, he got enough food for 1 year from the king. All right, 3 ships and enough food for 1 year। भाई जाओ 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 ढूंढो, भूख लगी खाना खाना। ओके, he got enough food for 1 year। हाँ, I'm coming. For a voyage of 1 year. So he wanted to go to search new, discover new lands. So was he going on a helicopter or on a ship? So when you travel on a ship, it is called voyage. All right. The journey on the ship is called, okay, you have a journey on the train, but you have a voyage on the ship. Got it? There are lots of words in English. That's why I'm saying this. People out of शॉविनिज्म, बस अपने अपने आप को बेहतर बताने के चक्कर में देश है कि हिंदी में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा वर्ड्स हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा वर्ड्स हैं। हिंदी से बहुत ज्यादा वर्ड्स है किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। और हम लोग देख सकते हैं सामने से, आप हिंदी में कहेंगे दोनों के लिए एक ही वर्ड बोलेंगे, यात्रा, समुद्री यात्रा। ठीक है, राइट। लेकिन इंग्लिश में क्या वर्ड आया? a voyage, a voyage of 1 year. He had enough food for the voyage of, for a voyage of 1 year. For a voyage of 1 year. He left Spain on the 3rd of August.
He left Spain on the 3rd of August 1492. He left Spain. When did he leave Spain? On the 3rd of August 1492. What happened on the 3rd of August 1492? He left Spain after getting 3 ships and food from the king and the queen of Spain. If somebody asks you what happened on the 3rd of August 1492, oh, that was a very important date. On the 3rd of August 1492, Columbus left Spain with 3 ships with and food, enough food for a voyage of 1 year, for a journey of. So his journey began on the 3rd of August. After 3 months at sea, 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 his sailors became tired and ill. After 3 months at sea, फिर आया after 3 months at sea, समंदर में 3 महीने बिताने के बाद, after 3 months at sea, शादी के 5 साल बाद, after 5 years of their marriage, after 5 years of their marriage, यहाँ क्या लिखा बेटा? After 3 months at sea, 3 महीने कोर्स करने के बाद, after 3 months in the course, right? You were in the course? After 3 months in the, okay. बहुत मुश्किल है, हम समझते हैं, क्योंकि आपके पास 1000 ऑप्शंस और आफ्टर डूइंग द कोर्स फॉर 3 months, सबसे नेचुरली यही लगता है, क्योंकि हिंदी से मैच करता है। क्या लगता है दोस्तों? आफ्टर डूइंग द कोर्स फॉर, गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही। आफ्टर डूइंग द कोर्स फॉर 3 months, आफ्टर डूइंग द कोर्स फॉर, आफ्टर 3 months in the course, he realized that he was wasting his time. He realized that he was 3 महीना बिताने के बाद कोर्स में उसने रियलाइज किया कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। He decided to leave the course, or he decided to work harder. Okay, so after 3 months at sea मतलब समझ गए कहाँ? at sea मतलब क्या? समंदर में, मतलब पानी के अंदर, जहाज पे। 3 महीने जहाज पे बिताने के बाद, या 3 महीने तक जहाज चलता रहा, इतना समझ सकते हैं। और अभी भी कहाँ है? समंदर में। 3 महीना से कहाँ है? आफ्टर 3 months एट सी। तो मैं इसकी एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में हिंदी नहीं बताऊंगा, आपको दिमाग में वो पिक्चर डालूंगा। शिप चलना शुरू हुआ, ठीक है, शिप चल रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना हो गया। आफ्टर 3 months एट सी, आफ्टर 3 years एट स्कूल, मतलब क्या हुआ? स्कूल में 3 साल बिताने के बाद, यानी पढ़ने के बाद, ऐसा ही सोच सकते हैं ना इसमें। आफ्टर 3 months, 3 years at school, after 2 years in jail. अब कौन बोलेगा बिताने का इंग्लिश तो लिखा नहीं, कैसा हो गया ये? तो जेल में क्या ही करेंगे? कॉमन सेंस लगाइए। एक मेरी स्टूडेंट थी, प्यारी सी लड़की, बहुत मेहनती, बहुत कम जानती थी, उसके बारे में कई बार मैंने पहले भी बोला होगा, गुड़िया। तो जब ऐसा ही कोई सेंटेंस वो अपने गांव में बोली, तो वहाँ गांव में भी, हर एक गांव में एक टीचर होता है दोस्तों इंग्लिश का, ठीक है। और अगर उसको पता चले कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो पक्का आपको टेस्ट करना चाहता है, ये बताने के लिए कि कैसा तुम बेवकूफ बन रहे हो। वही सबसे ज्यादा जानता है, वो गांव वाला टीचर, ठीक है। वो कंपटीशन करता है उन स्टूडेंट से जो बाहर शहर में स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और आपको नीचे दिखाने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो लोग को कुछ चीज रटा जाता है पढ़ाते पढ़ाते,
ठीक है, वही चीज पूछ करके आपको नीचे देगा कि अभी तुम नहीं जानते हो। ठीक है, तो बच्ची ने कोई सेंटेंस ऐसा ही बोला था जिसमें कुछ वर्ड्स एब्सेंट थे लेकिन मीनिंग ऑब्वियस था, जैसे ये वाला कि जेल में 3 महीने बिताने के, क्या स्पेंडिंग बोलना जरूरी है, इसके बगैर नहीं बोल सकते? आफ्टर 3 months in jail, he has started to feel frustrated, right? Any problems or guilty, right? तो जो भी बोलना है, लेकिन आपने यहां बिताना नहीं बोला तो हम कैसे बिताना समझें? ऑब्वियस है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कुछ समझने का। 3 महीना जेल में रहने के बाद अब बिताना की जगह हम रहना बोल दिए इस बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है दोस्तों? तो जैसे ये शब्द बदल रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंग्लिश में भी ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास। ये वाला एक इजी ऑप्शन है क्या, आफ्टर 3 months इन जेल। विनय सर के साथ 6 महीना बिताने के बाद मैंने ये समझा कि इंग्लिश बहुत ही सिंपल है और इजी है सीखने को, अगर हिंदी को छोड़ के सीखा जाए तो। कैसे बोलेंगे? आफ्टर 6 months विद विनय सर आई रियलाइज्ड। आफ्टर 3 months at sea, his sailors became tired and इल। आपको जो भी सिखाया है इस लाइन के बाद ही इसको बेस बना के सिखाया है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, कल की छुट्टी है। मुझे वो जहां जहां मैंने एक्सप्लेन किया, ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, वो हिस्सों पर आपके एक प्रैक्टिस आपने बोला है मुझे कि आप करेंगे, जिस दिन मैंने पढ़ा दिया उस दिन आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी। उसके बाद वाली प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस मैं दूंगा और गारंटेड दूंगा, और कभी आप नहीं भूलेंगे। बस एक प्रैक्टिस आज आप कर लेना, आज पढ़े हो आज ही प्रैक्टिस करना। 3 महीना हॉस्टल में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ माँ बाप का वैल्यू क्या होता है। आफ्टर 3 months इन हॉस्टल, या एट हॉस्टल, कोई बात नहीं, एट हॉस्टल, इन हॉस्टल, ठीक है। या हाँ, एट हॉस्टल साउंड्स बेटर। आफ्टर 3 months एट हॉस्टल आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली। व्हाट इज बोलने का जरूरत भी नहीं था, जैसे हिंदी बोला क्या होता है मैंने बोला था, लेकिन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड पेरेंट्स। या ओके, लेट्स कंटिन्यू। They wanted to go home. They wanted to go home. Go home. They wanted to go home. घर जाना चाहते थे. They wanted to give me just 3 more days. Give me just 3 more days, said Columbus. Give me just 3 more days. मुझे बस 3 महीने दे दो. 3 दिन दे दो. Give me just 3 more days, said Columbus. Give me just 3 more days. I will pay you back. I will वापस कर देंगे पैसा। 2 days later, कब से 2 दिन गिनूं? जहाज जिस दिन से शुरू हुआ वो तो 3 महीने अब तक भी पर चलता रहा। 2 days later, जब उसने कहा गिव मी 3 more days, गिव मी 3 more days, सिंस दैट डे 2 days later, ठीक है, 2 days दे सॉ लैंड। दे सॉ, उन्होंने क्या देखा? हाँ, उसके पहले क्या देख रहे थे? पानी पानी पानी। दे सॉ लैंड। It means Columbus was experienced. When he said, give me just 3 more days, he must have thought something. He must have noticed something. He knew he was close to land. Give me just 3 more days. 2 days later, they saw land. So, what do you think? He was a great explorer or he was not? He was a great sailor or he was not? He was a great sailor. 2 days later, they saw land. उन लोगों ने क्या देखा? लैंड देखा। लैंड देखा तो बोले तो हिंदी में क्या देखा?
जमीन देखी। अब वापस आइए पीछे वाले सेंटेंस में, ही begged the king and the queen of Spain to give him money to discover new lands। अब बोलिए इसका हिंदी, यहां लैंड्स क्या था? जगह, ना कि नई जमीन। नई जगह ढूंढना चाहता था, नई नई जगह जाना चाहता था। ही वांटेड टू डिस्कवर न्यू लैंड्स। तो लैंड की दो मीनिंग, एक जमीन लैंड है और एक जगह भी लैंड है। when you are in a foreign land, when you are in a uh, land is a country as well. Land is a country. He wanted to discover new lands. He wanted to discover new Hindi, new countries. Not Hindi, but he wanted to discover new lands. He wanted to discover new countries, right? तो लैंड, यहां जो लैंड है, ही दे सॉ लैंड, ये जमीन है। अब जमीन को तुम पागल हो जाओगे, छोड़ के भाग सकते हो मेरा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीखना, सबको बोल रहा हूं, घबराओ नहीं कि तुम पागल हो सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो। क्योंकि मैं आई वॉन्ट टू गो, आई एम दिस लव मैरिज अरेंज मैरिज वाला स्पोकन इंग्लिश टीचर नहीं हूं। एक लाइन में यहां सीरियस पढ़ाई होगी, जिसका एक रिजल्ट ये होगा कि एक दिन तुम टीचर हो सकते हो इंग्लिश के। ठीक है दोस्तों, अगर सही से लगे हो तो अब यहां लैंड जो है, दे सॉ लैंड, ये है जमीन, ये है अनकाउंटेबल नाउन। सोचो, अगर हिम्मत है तो। दे सॉ लैंड, उन्होंने क्या देखा? देश नहीं देखा। दे सॉ लैंड बिकॉज दे वर sick and tired of seeing water। देखो होता क्या है, when you spend a lot of time at sea, then you see only water, only water, only water every day, and it messes up your mind. Psychologically, you start to feel very unhappy about it. So in merchant navy, after I think 9 months at sea, they give you 3 long months of holidays. You go home, relax, because it's very important. There are two problems when you spend time at sea, long time at sea. One, psychologically you become upset, sad, less happy, and physically your bone density also becomes a little weak. Not so strong your bones remain, because the air at sea is salty, and when you breathe in that salty air, okay, then it affects your bones and your strength of the body, physical body. So you become weak. So to recover, you need to spend time on land. That's why they give you long holidays, 3 months. Okay, in merchant navy. Okay, now wait for a second. I'm trying to tell you that because they become tired and sick of seeing water, 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 finally they saw land। क्या देखा? जमीन, सूखा एरिया, नॉट वाटर। तो ये जमीन क्या है? काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? एक जमीन दो जमीन हो सकता है, प्लॉट हो सकता है काउंटेबल। एक प्लॉट देखा यहाँ, एक प्लॉट यहाँ, एक प्लॉट वहां, प्लॉट काउंटेबल इंग्लिश में, प्लॉट। ओके, बट लैंड इज नॉट। लेकिन लैंड का मतलब जब देश होगा तो लैंड प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर एक वर्ड का मीनिंग ये है तो अनकाउंटेबल है, वो वर्ड का मीनिंग वो है तो काउंटेबल है। ये कितना पागल बनाने वाला बात है बताओ, कि एक ही वर्ड की अगर मीनिंग ये है तो अनकाउंटेबल है, और मीनिंग वो है तो ये पागल बनाने वाली बात है कि नहीं? और मीनिंग भी रिलेटेड, एक तरफ जमीन बोल रहे, एक तरफ देश बोल रहे, कोई बिल्कुल अलग अलग मीनिंग हो ना। जैसे हिट मतलब मारना, हिट मतलब सक्सेसफुल, कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि मीनिंग एकदम अलग है। तो पता चल जाता है कि मारना वर्ब होगा, हिट, हिट सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, हिटफुल, हिट शो, ऑलराइट। तो ये हिट एडजेक्टिव है, और ही हिट हिम, ही हिट मी, तो ये वर्ब है। आसानी से पता चल जाता है कि मीनिंग एकदम अलग है। लेकिन यहां लैंड एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, और फर्क कितना सा हल्का सा, एक जमीन है और एक देश है। गौर करिएगा वहां पे, he discovered new, he wanted to discover new lands, he wanted to discover new lands, he saw land, he wanted to discover lands, वो नए नए देश ढूंढना चाहता था, right? And he saw
लैंड, उसने देखा, जमीन देखी उसने, देश देखा, कोई मतलब बनता है ये बात बोलने का, देश देखा मतलब घूमने गया देश, उसने जमीन देखी, पानी में पागल होते होते बोला 2 दिन देना बाबा, एंड 2 days later, sorry, he said give me 3 days, and 2 days later they saw land. It was an island. अब यहाँ इट किसके लिए है, वो जो जगह देखी, वो जो जमीन देखी ना, इट वॉज एन, इट वॉज एन आइलैंड. एस इज साइलेंट एवरीवन, ISLAND, island. Hey, don't you have the books? I haven't given you the books. And your books? I haven't given you the books. Fine. Tomorrow I have a day off. So tomorrow I'm going to take care of this printing thing for sure. I'm a very busy person these days because of KYP, especially, I'm really busy. So much headache, so much trouble. Kal KYP भी बंद है, by the way. Okay, no classes there. Okay, so we will meet the day after tomorrow. One day complete rest. But I will not have time to rest because I'll have to print books. Okay, let's see. It was an island. साजिद, it was an island. It से शुरू कर रहे हैं, समझो, पहचानवा रहे हैं, जो लैंड देखा था ना, वो लैंड क्या था? It was an island. Okay, the land was an island. लैंड के लिए it ले लिए, the land was an island. अब उसी लैंड के लिए बोल दिए it was an island. Got it? Okay. An island is an area surrounded by water. The biggest island in this world is Greenland. Okay, in a way, हम समझ रहे तुमने क्यों बोला, ठीक है, but Australia is considered a continent now. तो हम लोग the biggest island कहते हैं ग्रीनलैंड को. किसको? Yeah, and what is his name? This guy, America's president. डोनाल्ड मत बोलो, डोनाल्ड. इंग्लिश बोल रहे हो ना, नहीं तो फिर हमारे मोदी जी बन जाओ और कुछ का कुछ बोल दो, ठीक है. उन्होंने तो जो गालियां निकाली है उसके नाम का बनाया है, वो तो सब जानते हैं, वीडियो वायरल है. उसने विवेक, क्या नाम है, विवेक का मुंडन कर दिया था, विवेकानंद को विवेक का मुंडन कर दिया था. उसने बोला विवेक का मुंडन, विवेकानंद को बोल दिया विवेक का मुंडन. हु? ट्रम्प. तो ट्रम्प ने जब नाम खराब किया विवेकानंद का विवेक का मुंडन, तो मोदी जी ने बोला रुको बेटा समझाता हूं तुम्हें, और उसको बोल दिया जो बोल नहीं सकते क्लास में, उन्होंने ऐसा नाम उसका, डोनाल्ड ट्रम्प को जो बनाया, गालियां निकाली. अगर आप वीडियो देखोगे ना, उन्होंने ऐसा नाम बिगाड़ा, उसका गाली निकाल दी सीधे. ओके, तो बाहर में जान जाओगे तुम लोग, बता देंगे लोग. साजिद है ना अपना रॉक स्टार, वो बता देगा तुम लोग को जितनी गंदी बातें जाननी है, साजिद. ऑलराइट. तो ये ओके, साजिद स्टार्ट चार्जिंग देम, पैसे मांगना शुरू करना, बोलना पैसे नहीं सिखाएंगे. It was an island. S is silent. So that place was an island. Columbus named it San Salvador. Columbus named it. Columbus ने इसका नाम रखा. Columbus named it San Salvador. And its people, Indians. Columbus ने नाम दिया, भाई इस जगह का नाम सैन साल्वाडोर होगा. He named it San Salvador. It's a Spanish name. Okay, San Salvador. Okay. And its people, भाई काहे इंडियंस बुलाया भगवान जाने. ओके, वहां कोई नदी होती होगी, इंडस रिवर, इसीलिए बुला लिया इंडियंस. या उसको लगा हुआ साले ये सब देश जंगली आदमी है ना, एंड ही डिड मैसेकर देयर. देखो हल्का सा एक लाइन छोटा हुआ है, हल्का सा देखना, झक थोप के लिखा हुआ है दोस्तों. इट वॉज एन आइलैंड. Columbus named it San Salvador and its people Indians. Next, they sailed to Cuba. Next, they sailed to Cuba. They sailed to Cuba. फिर वो कहां पहुंचे? Columbus thought he was in China or Japan. Columbus thought he was in or Japan.
उसको क्या लगा, आई हैव रीच चाइना, आई एम इन जापान, बट ही वॉज इन क्यूबा। चाइना एंड जापान वर वेरी फार फ्रॉम देयर। उसको क्या लग रहा है, आई एम इन चाइना, आई एम इन जापान। अरे बेवकूफ, जैसे बच्चे, ओके, चलो निकले कि उनको जाना है कश्मीर, ठीक है, यहां से पटना पहुंचे है ना, मम्मी आ गया, मम्मी आ गया, बिकॉज they don't understand that this world is a big place. The distance between India and Bihar Sharif and Kashmir is really huge. So they just reach Patna. It takes 3 hours, 4 hours. By the time they're Banarasi पहुंचते पहुंचते कहते मम्मी अब कितना देर और, अभी तक नहीं आया, right? Because they're kids. So this guy Columbus had no idea of the size of this earth. Okay, when he reached only Cuba, Cuba बस सैन साल्वाडोर से बगल में है, और वहां से उल्टे जाकर के आता है चाइना, यानी खूब दूर था चाइना, एंड ही थॉट he was in China. The world was a lot bigger than he thought. The world was a lot bigger than he thought. जितना वो सोचता था दुनिया उससे बहुत बड़ी थी, उसको पता नहीं चल रहा था। The world was a lot bigger than he thought. उस सोचा पहुंच गया चाइना, जापान। अब हम सोचे कि आपको आएगा 40 नंबर और आपको आ गया 80-85 नंबर। यू आर अ लॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई थॉट। मैंने टेस्ट दिया आपको, टेस्ट में आप, मैंने सोचा 40-50 आएगा लड़के को, 80-85 ले आया। यू आर अ लॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई थॉट। हमको जितना लगा था उससे तो आप बहुत ज्यादा तेज निकले। यू आर अ लॉट मोर intelligent than I thought. So suppose you got a wrong number and that person has been calling, talking, and then now you are feeling curious to see that person. Okay? और उसके बाद उस ने चले रुद्र को ले लेते हैं, ठीक है। रुद्र ने कहा कि हाँ ठीक है फोटो भेजो, ठीक है। तो फोटो भेजा, उसने कहा पहले तू भेज, ठीक है। तो इसने भेज दी फोटो। वो लड़के कहे अरे लड़का तो हम जितना सोचे थे उससे ज्यादा हैंडसम है। ही इज अ लॉट मोर हैंडसम देन आई थॉट। फटाक से उसने अपना फोटो भेजा। अब उसने भेजा तो देख के शी इज अ लॉट वर्स देन आई थॉट। अ लॉट, ये तो हम जितना से बहुत ज्यादा गंदी है, कम अच्छी है ना, वर्स, बैड से वर्स। ओके, खैर। सोचे थे स्वर्ण सूरजमुखी, सूरजमुखी और निकली चुड़ैलमुखी। ऑल राइट। तो द वर्ल्ड वॉज अ लॉट बिगर देन आई थॉट। आप इंग्लिश के बारे में जो सोचे थे और जो भी आपको एहसास है, आप चाहे तो एक सेंटेंस बना सकते हैं। कोई बोल सकता है हमको जितना लगा था कि जितना मस्ती होगा ना क्लास में, उससे ज्यादा मस्ती हो रहा है, तो बोलेंगे द क्लास इज अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग देन आई थॉट। दूसरा बोल सकता है कि हम जितना इंग्लिश को आसान समझे थे उससे बहुत ज्यादा मुश्किल निकला, हमको लगा था हम जाएंगे 2-3 महीना में सीख जाएंगे। इंग्लिश इज अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन आई थॉट। कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, जितना हम सोचे थे कि स्ट्रिक्ट होंगे वैसा कुछ नहीं है, बहुत उल्टे फ्रेंडली हैं। सर इज अ लॉट फ्रेंडलियर देन आई थॉट। जितना हम सोचे थे फ्रेंडली होंगे उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। तो जो सोचे थे उससे ज्यादा है वो चीज, ठीक है। तो गाइस ये सेंटेंस आप बना सकते हैं, राइट। तो जितनी मैंने बात पढ़ाई है, मैं चाहता तो फिनिश करता जल्दी जल्दी, बट अगेन यू नो मी, I am going slow because I want to really give you time to understand things properly. So don't wait for tomorrow. Just start practice tonight. I will send you the recording in half an hour.